I'm sorry बच्चों, I was on mute mode, right? Let's get started. चलो क्या पढ़ना है हम लोगों को? We are learning now a new chapter which is for your internal assessment and it is about our environment. क्या पढ़ेंगे हम लोग? Our environment. Is it okay? चलो बच्चों हो जाओ शुरू. बोर्ड्स के लिए नहीं है बट फॉर योर assignment. So here we go with the chapter. मैंने कुछ पूछा आप लोगों को. What is the meaning of the word environment? पता है क्या आप लोगों को? Environment मतलब क्या? Come on children. Specific definition चाहिए क्या आपको? हाँ है तो अच्छा है ना. It is nothing but what? Actual word, this environment is derived from the word environ. Environment word is derived from the word environ, which means to encircle or to surround, surrounding. समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो जो वर्ड environment है, it is derived from a word environ, which means surrounding. So you can define this environment as what? The physical and biological world where we live. Did you hear me? Yes, sir. The physical and Sir, biological. environ कौन से लैंग्वेज से लिया गया है? It should be Greek word or maybe Latin. देखना पड़ेगा. So the physical and biological world where we live is nothing but what? Environment is. Is this clear everybody? समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. तो where we live is nothing but what? Surrounding. Surrounding means what? इसमें दो चीजें, biotic and abiotic. There are two types of components around us, biotic factors and abiotic factors. Biotic factors मतलब living things. Abiotic factors मतलब non-living things. Yes or no बच्चों? Yes, Tell sir. me. So we have biotic factors and abiotic factors. Examples बताओ आप लोग चलो. When I say biotic factors, it includes what? हम लोग. We human beings. So animals. Yes. All Animals. living things. It could be plants, it could be animals, it could be bacteria. जो जिंदा चीज है वो सब. बराबर? Flora and fauna. Yes, sir. All living things. ये यहाँ आ जाएंगे. जब हम लोग बोलते हैं abiotic factors, so abiotic मतलब कौन? Sir, non-living. Sir, rock, Non-living. dirt, mud, sand. Yes. Wind, water, soil. ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं. तो ये दोनों फैक्टर्स एक साथ में बनाते हैं अपना एनवायरनमेंट. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, बोलो sir. बच्चों. एंड Yes, दे sir. कीप इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते रहते हैं, है कि नहीं? सो विदाउट biotic, abiotic cannot exist. Without abiotic, biotic cannot exist. So दोनों को एक दूसरे का
मदद का जरूरत होता है. So that is why both are equally important to form our environment, to form our ecosystem. तो इन्हीं की वजह से होता है अपना इकोसिस्टम बच्चों. अब ये क्या चीज होती है? इकोसिस्टम क्या होता है? बोलो. यू नो इकोसिस्टम बोले तो क्या होता है? It is a place where biotic and abiotic organisms interact with each other. Very Sir, good. biological component of our surroundings. Yes, it is the place where these biotic and abiotic factors interact with each other by means of food chain या biogeochemical cycles, and they transfer energy. ठीक है? They transfer energy or they transfer materials. They recycle these materials. So that is what the ecosystem is. So it is nothing but the unit of biosphere. हम लोग बोल सकते हैं ecosystem is nothing but what? Unit of biosphere. Biosphere, or it is a place where these biotic and abiotic components interact with each other. They exchange or they recycle their materials, or they recycle energy. They transfer energy. So that is what. अब इसका definition मैं नहीं दे रहा हूँ, but अगर पूछा तो आप लोग बोलने को आना चाहिए. Ecosystem is a unit of biosphere, structural and functional unit of biosphere, where living and non-living components interact with each other, transferring energy, all right, and cycling of materials. All right, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या डेफिनेशन सब Yes, लोग? sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट बेसिकली इकोसिस्टम में एक्सचेंज होता है या फिर रिसाइकल होता है? सो देयर इज साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स. बोला मैंने, किस चीज का साइक्लिंग होता है? Sir, natural. ऑफ कोर्स नाउ साइक्लिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स, जैसे कि आप लोगों ने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ा है या सुना होगा. नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल. So those are nothing but what? Transfer of or cycling of different materials. बराबर है? Correct बच्चों? Likewise, there is flow of energy. जब भी हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं तो ये चीजें होनी चाहिए. There is flow of energy. इससे रिलेटेड हम लोगों को कुछ स्पेशल चीज पढ़नी है. The cycling of materials क्या होता है? All those cycles what you have heard, nitrogen cycle, carbon cycle, अच्छा, oxygen okay, cycle, sir. वाटर साइकिल, वो सब एक साथ में बनाते हैं आपका इकोसिस्टम. ओनली इंटरेक्शन ही होता है लिविंग और नॉन लिविंग चीजों के बीच में. तो हो सकता है आपको वाइवा में ये सब चीजें पूछी जाए. दे माइट ऑल्सो आस्क यू हु गेव द टर्म इकोसिस्टम. सुना है आप लोगों ने ये? एनीबडी नोज दिस? हु गेव द टर्म इकोसिस्टम? याद रखो, द टर्म इकोसिस्टम वाज given by one British ecologist जिनका नाम था A.G. Tansley. A.G. Tansley. समझ में आया? in 1935. याद रहेगा ये? The term ecosystem was Yes, given sir. by British ecologist A.G. Tansley in the year 1935. I hope now you will be able to remember this. ठीक है? पहले इसको अलग अलग टर्म से जाना जाता था, बट नाउ वी नो इट एज अ इकोसिस्टम. पहले इसको माइक्रोकॉस्म भी बोला जाता था, बायोनियोसिस भी बोला जाता था, बट नाउ द फाइनल टर्म फॉर इकोसिस्टम इज this is the final term, ecosystem. Is this clear everybody? Please tell. Comfortable everyone? Yes. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Those who joined late, for them I'm asking. हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों. अब आवर एनवायरनमेंट में पहले एनवायरनमेंट का मीनिंग हमने देखा, अब हम लोग इकोसिस्टम का मीनिंग देखे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स. आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों, कीप इंटरेक्टिंग विथ मी. Yes, sir.
Yes, sir. हाँ, बाकी लोगों ने क्या मौन व्रत रखा है क्या? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, चलो पढ़ते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग बेसिस है ये इकोसिस्टम को क्लासिफाई करने के। पहला बेसिस हम लोग अभी पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द इकोसिस्टम। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोसिस्टम मतलब वेदर इट इज नेचुरल और इट इज आर्टिफिशियल। कौन से दो टाइप्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों? नेचुरल और Natural or artificial? artificial. So shall we learn now these two types? Yes, sir. क्या आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. चलो हो जाओ शुरू। कब बोलेंगे हम लोग इकोसिस्टम को नेचुरल, कब बोलेंगे हम लोग इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल? बोलो बच्चों। Sir, natural जब human interference नहीं होता और artificial जब होता है। बराबर है। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या है? अगर ह्यूमन इंटरफियरेंस है तो आर्टिफिशियल है, ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं है तो वो नेचुरल है। वेरी सिंपल। हाँ कि ना बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. So ecosystem which is made by nature without human interference will be natural, and the ecosystem that is maintained by human will be called as a artificial. Clear है सबको ये? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो अब एग्जांपल्स बताओ चलो मुझे। Can you tell me some examples of a natural ecosystem? A lake. So forest. Very good. Yes, different ecosystems हैं. Like you can say pond ecosystem. Pond हम लोग create नहीं करते, वो natural होता है। Artificial pond नहीं बोल रहे हम लोग। Pond ecosystem बोलो या desert ecosystem बोलो। Ocean भी एक ecosystem ही है। Sea is also another ecosystem बच्चों। Forest ecosystem है, grassland ecosystem है। Are you understanding this? Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चों? तो फॉरेस्ट बताओ, पॉन्ड बताओ, ओशन बताओ, डेजर्ट बताओ, ये ह्यूमन थोड़ी ना क्रिएट करते, ये तो नेचुरल होते हैं। सो हो गया ये नेचुरल इकोसिस्टम्स। इजी। अब इसका ऑपोजिट Yes, क्या sir. आएगा? इसका ऑपोजिट आएगा So, आर्टिफिशियल। zoo. बोलो एग्जांपल्स बताओ। So zoo, national park. इकोसिस्टम Aquarium. पढ़ना है अपने को, ठीक है। देखो, यू कैन से एक्वेरियम। अब बताओ, एक्वेरियम तो हम लोग मेंटेन करते हैं ना? हाँ बच्चों, करेक्ट। गार्डन, Yes, sir. एक्वेरियम बोलो, गार्डन बोलो, ऑर्किड्स बोलो। Zoo नहीं आएगा क्या? अरे इकोसिस्टम चाहिए, जू इज नॉट अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहां पे इंटरेक्शन होना चाहिए बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो ऐड हियर क्रॉप्स, क्रॉप प्लांट्स। एम आई क्लियर? प्लीज टेल। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लासिफिकेशन सबको समझा? बेसिस था नेचर ऑफ द इकोसिस्टम। अब दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। ड्यूरेशन ऑफ इकोसिस्टम पढ़े? अब इसमें Yes, देखो, sir. ड्यूरेशन ऑफ इकोसिस्टम से वी हैव गॉट अगेन टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। कौन से दो टाइप्स रहेंगे? एक होगा टेम्पररी इकोसिस्टम और दूसरा होगा परमानेंट इकोसिस्टम। हाँ कि ना Permanent. बच्चों? बराबर Yes. ना? There are two types of ecosystems depending upon how long it exists. तो आ जाओ चलो पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। टेम्पररी इकोसिस्टम एंड परमानेंट। PER, हाँ बच्चों, स्पेलिंग। परमानेंट इकोसिस्टम, आर यू रेडी फॉर इट? बोलो। Yes, sir. तो Yes, शॉर्ट sir. लिव्ड
यस, शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्गर लिव्ड ना, वही मीनिंग है। शॉर्ट लिव्ड टेम्पररी है, लॉन्ग लिव्ड और लॉन्गर ड्यूरेशन वाला आपका परमानेंट है। तो शॉर्ट लिव्ड में एग्जांपल क्या आएगा बताओ मुझे, कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल? जो हम लोगों के पास होता है, ह्यूमन मेड होता है जो एक्वेरियम, बहुत इज इट देयर लाइक आप लोगों के घर में एक्वेरियम बचपन में था और अभी भी है, या इट विल बी देयर कंटिन्यूअसली? नो, ऐसा और नो, हाँ कि नहीं Yes. बच्चों? तो Yes, ये क्या sir. होगा, एक्वेरियम विल बी योर टेम्पररी। फिर ये क्रॉप मतलब प्लांट्स आर्टिफिशियल भी वाले आपके टेम्परेरी में आ जाते हैं। बोल सकते हैं, यस, वो टेम्पररी हो सकते हैं। या कुछ और भी हो सकता है, जैसे आप लोगों ने आपके स्कूल में लेबोरेटरी में बनाया कोई इकोसिस्टम, टेम्पररी इकोसिस्टम बनाया है कि नहीं, तो दैट वुड आल्सो बी टेम्पररी वन। बट जो लेक्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, ये नेचुरल वाले, ये लॉन्ग टर्म होते हैं ना, है कि नहीं बच्चों? डेजर्ट बोलो, फॉरेस्ट बोलो, आई Yes, होप यू sir. अंडरस्टूड दिस क्लासिफिकेशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, हाँ sir. कि ना? चलो तीसरा क्लासिफिकेशन सुनो। थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन साइज। कौन से बेसिस पे? साइज ऑफ द इकोसिस्टम से हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स। यही वाइवा क्वेश्चन है आपके यहाँ, याद रखो। सो साइज से क्या बोलेंगे हम लोग? दो टाइप्स हो सकते हैं, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। ऐसा और नो बच्चों? हाँ कि ना? बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. तो ना Yes, sir. एग्जाम्पल बताओ चलो। स्मॉल साइज इकोसिस्टम में कौन आएगा? बोलो। Aquarium. बोल सकते हैं एक्वेरियम, या देखो एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे भी देयर वुड बी सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग, है ना, उसमें सॉइल है, उसमें अर्थवर्म है, देयर में बी फ्रॉग आल्सो, तो वो एक क्या हो गया? इकोसिस्टम ही हो गया ना बच्चों। ऐसा और नो? Yes, Yes, sir. sir. सो इकोसिस्टम अंडर ए रॉक, छोटा सा हो गया ये, है कि नहीं? या यू ऑल्सो कैन से आपके घर में फ्लावर पॉट है, तो फ्लावर पॉट भी एक इकोसिस्टम ही है, हाँ कि ना? तो उस इकोसिस्टम में Yes, sir. इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, उसमें फ्लावर है, प्लांट है, सॉइल है, वाटर है, तो वो भी एक इकोसिस्टम ही है कि नहीं है? यू अंडरस्टूड? Yes. और लार्ज वाला बोला तो क्या होगा? ओशियन, सी, फॉरेस्ट, डेजर्ट। आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस। डिड यू बच्चों? Yes. हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। आई होप नाउ यू ऑल आर कॉन्फिडेंट विद दिस। कुछ पूछना है किसी को इसके बारे में? एनीबॉडी? No, sir. दोज हु जॉइंड लेट, कुछ पूछना है किसी को बच्चों? कॉन्फिडेंट है सब लोग? चलो अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जो बायोटिक और एबायोटिक थे वो। आर यू रेडी फॉर इट? Yes, sir. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो दो कंपोनेंट्स हम लोगों ने सुने थे, बायोटिक और Biotic and Abiotic. abiotic. लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक। चलो फिर अभी एक एक कंपोनेंट डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो क्या आता है दिमाग में हमारे? Non-living. नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि क्या? अब Rocks, इसमें minerals. ऑफ कोर्स इसमें कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, उनको हम लोग The और solar भी, energy. हाँ इसको हम लोग और भी दो तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कैन वी क्लासिफाई देम एज व्हाट? ऑर्गेनिक, Organic, Organic. inorganic, and climatic. और क्लाइमेट फैक्टर्स। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक? ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क पता है क्या आपको? बोलो बच्चों। तो अगर ऑर्गेनिक जो मैं बोल रहा कार्बन हूँ, बेस्ड होता है।
कार्बन और हाइड्रोजन भी. Carbon and hydrogen, sir. हाँ. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स. एम आई राइट? हाँ बच्चों. Yes, sir. तो अब इनऑर्गेनिक में कौन आएगा? इनऑर्गेनिक में आ जाएगा आपका वाटर, बराबर है, कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड, sir. कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ में नहीं है, वो सब है कि नहीं बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन अलग अलग बता रहा हूं मैं ये, ठीक है? हाइड्रोजन मतलब in separate form, not in a combination form. Calcium, phosphorus, Sir, not nitrogen. hydrocarbon. हाँ, nitrogen. All these will be the inorganic substances which may be in simple form or a compound form. जैसे अभी compound form में हो सकता है ये water है ना? It could be carbon dioxide dissolved in the water. ये सब आ गए आपके inorganic components. Am I clear? बोलो बच्चों. तो दे मे बी इन द एयर, दे मे बी इन द वाटर, दे मे बी इन द सॉइल. कहीं पे भी हो सकते हैं. हवा में हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल. फ्री Yes, sir. स्टेट में हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में हो सकते हैं, इन एनी फॉर्म इट कुड बी. अब ऑर्गेनिक वाले बताओ. चलो, ऑर्गेनिक में क्या होगा? इट विल हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन वाले सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके, है कि नहीं? प्रोटीन्स बोलो, फैट्स बोलो. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ बच्चों. हाँ, डीएनए आरएनए उसको क्या Yes, बोलते हैं sir. आप लोग? डीएनए आरएनए को क्या बोलते हो आप लोग? न्यूक्लिक एसिड्स. पता है कि नहीं पता? उसमें भी हाँ, होते हैं sir. हाइड्रोकार्बन्स. एंड ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम लोग भी ऑर्गेनिक ही है ना? एस और नो? फ्लोरा एंड फौना. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Sir, but ये floral fauna abiotic नहीं होगा ना? हाँ हाँ, पार्ट्स ऑफ देम. यस, मतलब आफ्टर डेथ. एबायोटिक कभी? आफ्टर डेथ. After that. ठीक है. मतलब जब वो मर जाएंगे तो उनके बॉडी के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह जो है वो सॉइल में, वाटर में, एयर में ऐड हो जाएंगे. डू यू एग्री? इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया. डिकम्पोजिशन होगा बॉडी का. समझा क्या? बोलो. Yes, sir. चलो, और वो रिसाइकल हो जाएंगे. फिर अभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या आएगा? क्लाइमेटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या? इट विल इंक्लूड योर सॉइल, है कि नहीं? इसमें क्या आएगा? सॉइल आएगा. इट विल इंक्लूड योर मिनरल्स. ओके, सॉइल है, मिनरल्स है. टोपोग्राफी, पता है आपको ये टोपोग्राफी? स्टडीड और नॉट, हर्ड और नॉट? विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, कितने सारे फैक्टर्स हैं. हाँ बच्चों, विंड, टेम्परेचर, light, all those factors togetherly form your even rainfall. Climate. Climatic factors. Simple है, easy है, comfortable Yes, सब sir. लोग. Abiotic factors are Yes, clear sir. to all. अब हम लोग पढ़ेंगे biotic factors. So are you ready? इसको लिख के रखो. Yes, जो sir. जो है वो सब. Keep writing this in your notebook. और यही पढ़ लो आपके वाइवा के लिए या प्रोजेक्ट के लिए वगैरह. You can learn it. ठीक है? रेडी फॉर बायोटिक फैक्टर्स बच्चों? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आएगा इसमें लिविंग फैक्टर्स और लिविंग एजेंट्स. अब इन लिविंग एजेंट्स में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं विच वी कैन क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. जैसे कि सबसे पहला आएगा उसमें प्रोड्यूसर्स.
प्रोड्यूसर्स मतलब कौन? दैट इज प्लांट्स, है कि नहीं? Plants. Producers are the plants, so they play an important role in the ecosystem because they prepare food by the process of photosynthesis. I hope everybody knows this equation Yes, sir. and a definition of photosynthesis. आपको term 1 में था ये, Yes, sir. याद है किसी को? Who will tell this other than you people now? बोलो equation बताओ, चलो जल्दी जल्दी. Sanchayita, can you tell equation? You had that in your term 1, na? बोलो. Sanchayita Das, are you there? No? भूल गए? Tell. Come on. Sir, Hmm. sir, 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of sunlight gives C6H12O6 plus 6 O2. 12H2O भूलने का नहीं है, अभी ऑलरेडी हो चुका है अपना ये. 6 CO2 plus 12H2 in presence of sunlight and chlorophyll pigment produces C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. है ना? याद है ना सब लोगों को ये इक्वेशन? Yes, Yes, sir. बच्चों. ग्रेट. आ जाओ आगे, अभी दूसरा कंपोनेंट पढ़ते हैं. After them comes the next component. Biotic factors में जो आएगा उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? We call them as consumers. है कि नहीं? Consumers. कौन होते consumers? Those who feed upon producers or autotrophs. Yes or no? बोलो बच्चों. तो mostly these are Yes, sir. animals. Mostly these are animals. Consumers are the animals which can't prepare their own food. बराबर है, they are heterotrophs and hence they are dependent on autotrophs or plants. तो ये basically कैसे होते हैं consumers? They are heterotrophic. They are heterotrophic. अब इन consumers को हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि क्या? We can say them as a primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Yes or no बच्चों? बताओ मुझे. Yes, sir. Consumers के अलग अलग टाइप्स हैं. कौन से टाइप्स हैं? पहला टाइप हो गया consumers का अभी इधर, primary consumers. अब primary consumers are nothing but what? They are first order consumers, या इनको हम लोग herbivores भी बोलते हैं. We can call them as a herbivores. कोई भी फूड चेन कंसीडर कर लो. जैसे आप ग्रास होपर, ये वाला फूड चेन देखो. अभी ये है ग्रास. ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है. ठीक है बच्चों. अब ये कीड़ा ग्रास को खा रहा है. ठीक है, ग्रास होपर. अब ग्रास होपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है. Who feeds upon grass? Frog feeds upon Frog. grass. ठीक है. ये लो, ये रहा फ्रॉग. अब फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. Snake. ठीक है, तो ये आ गया अपना स्नेक. और फिर स्नेक को खाएगा ईगल. तो अब इनको हम लोग नाम देने जा रहे तो हैं. पीकॉक भी तो खा सकते हैं ना? हाँ तो खाने दो ना, इंसान भी खाता है. that's not the question here. तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर, या इसको ही हम लोग बोल सकते हैं बच्चों
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये वर्ड याद रखना है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हमेशा प्रोड्यूसर होता है। ये जो ग्रास ओपर है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये फ्रॉक को बोलते हैं हम लोग थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं इनको? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फिर इसको फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन में, उससे ज्यादा नहीं होते। उसका एक रीजन है 10% लॉ। सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ? हाँ मयंक? Yes, हाँ sir. सर कि only 10% is हाँ, given to इसीलिए the other trophic ज्यादा से level, ज्यादा transferred 4 to the या other trophic level. 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोड्यूसर्स। ये कौन है बच्चों? ये है Primary प्रोड्यूसर producers. या ऑटोट्रॉप्स। फिर ये कौन है? हर्बीवोर। अब समझा क्या बच्चों? फिर ये कौन है? कार्निवोर। डिड यू गेट दिस? फर्स्ट लेवल कार्निवोर, ये भी कार्निवोर है, इसको फर्स्ट लेवल कार्निवोर बोल रहे हैं हम लोग। ये है सेकेंड लेवल कार्निवोर। डिड यू गेट दिस? फिर थर्ड लेवल कार्निवोर ऐसे आएंगे। Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज हु फीड अपॉन प्रोड्यूसर्स। दे आर ऑलवेज हर्बीवोर्स। एग्जांपल बताओ मुझे, अब इसमें क्या लिखूं मैं? So cow, और कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं, कोई भी लिख सकते हो। रैबिट हो सकता है, sir, horse, फिर गोट हो सकता है, ग्रास होपर हो सकता है। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। हाँ sir, बच्चों, third and रैट fourth trophic level वालों को क्या बोलता है? किसको? Third and fourth trophic level वालों को क्या बोलेंगे? यही है ना, कार्निवोर 1, फर्स्ट लेवल, carnivore ही बोलेंगे। सेकेंड लेवल कार्निवोर, वही Yes, है। sir. ठीक है, जो Okay, नॉन sir. वेजिटेरियन खाते हैं वो कार्निवोर्स ही होते हैं ना। एम आई क्लियर बच्चों? Yes, sir. टैडपोल, टॉर्टोइज, ये सब इसी कैटेगरी में आएंगे, जो पानी के अंदर होते हैं वो। अब आ जाओ दूसरा वाला, क्या बोलूं मैं? प्राइमरी के ऑपोजिट बोलो। Secondary. सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो सकता है? सेकेंडरी कंज्यूमर इज द वन हु फीड्स अपॉन हर्बीवोर्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डेफिनेशन समझा? सेकेंडरी कंज्यूमर इज द वन हु फीड्स अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर। और ट्रॉफिक लेवल के नंबर भी देने हैं आप लोगों को, तो कैसे दोगे? प्रोड्यूसर्स को हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, याद रहेगा ये। प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड Yes, एज sir. फर्स्ट ट्रॉफिक First लेवल trophic level. ऑर्गेनिजम्स। फिर ये कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल Second देम trophic एज, level. यस, ट्रॉफिक लेवल 2, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इज दिस क्लियर? अब इनको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। Third. थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोलो बच्चों। Yes, sir. तो अब इसके एग्जांपल्स बताओ चलो फटाफट। हु फॉल्स इन दिस कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स? So बोलो जल्दी fox. जल्दी। तो ये कार्निवोर्स होते हैं, फॉक्स हो सकता है, डॉग्स हो सकते हैं, फिर जो herbivores को खाते हैं. डॉग्स, बराबर है बच्चों? या इट कुड बी शुरुआत वाले, एक स्मॉल फिश हो सकता है जो पानी के अंदर क्रिल्स वगैरह खाए। स्मॉल फिश को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। यू ऑल्सो कैन ऐड वाटर बीटल्स, जो पानी में ही हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वाटर बीटल्स। आ जाओ आगे। तो पानी वाला फूड चेन अगर हम लोग यहाँ बनाएंगे तो कैसे आएगा? देखो, पानी में
सबसे पहले होंगे आपके प्रोड्यूसर्स, है ना, ये ग्रीन प्लांट हो गया। अब इसके ऊपर कौन फीड करता है बच्चों? देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब छोटे छोटे क्रील्स वगैरह एनिमल्स जो आई मीन ये वेट फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, इन्हीं को बोलते हैं, प्लांट्स को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स। मेक अ करेक्शन, यहां से शुरुआत होगी आपकी। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं जू प्लैंक्टन्स, मतलब वो क्रील्स, समझ में आया क्या? लार्वे ऑफ स्टारफिश एंड ऑल, क्रैब्स वगैरह, समझ में आ रहा है? फिर जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं स्मॉल फिश, समझा? स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन खाएगा? दैट बर्ड यू कैन से, जैसे आपका किंगफिशर। किंगफिशर। तो ये होता है एक्वाटिक फूड चेन। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, विल sir. लर्न दिस, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज अभी टाइम खत्म हो गया या हो रहा है, सो विल डू दिस लेटर। चलेगा बच्चों? व्हाट डू यू से? Yes, sir. सर आप ये टर्शरी कंज्यूमर का ये एग्जांपल बता दीजिएगा। टर्शरी में कौन आएगा? इट विल